Hello everyone. Today I am going to explain the numerical on the topic of Otto cycle, diesel cycle and dual cycle. In last class I have given you knowledge of the Otto cycle, diesel cycle and dual cycle and what is the comparison between these three cycles. Today the different numericals on these three different topics. First, the numerical is on Otto cycle. The question is, in an SI engine, as you are seeing here that the question is given on SI engine means spark ignition engine, means the question is on Otto cycle. In a SI engine working on the ideal Otto cycle, the compression ratio 5.5 and the pressure and temperature at the beginning of compression are 1 bar and 27 degree centigrade respectively. The peak pressure is 30 bar. Determine the pressure and temperature at the salient points and air standard efficiency. Assume gamma is equal to 1.4. So, here as you see, then just because of given SI cycle, so first of all, if you have if in any question the data is given in the form of SI cycle or CI cycle or dual cycle, the first requirement is yours to draw that particular cycle. So, first of all I have to draw the SI cycle, means a constant volume cycle. So, in PV diagram I have draw SI cycle where 1 to 2 is isentropic compression as shown here. 1 to 2 is isentropic compression, 2 to 3 is constant volume heat addition process, 3 to 4 again isentropic expansion process now here, and 4 to 1 is constant volume heat rejection process. So, first of all I draw the SI engine cycle, or you can say the Otto cycle. The things which are given here I will take this. The things written that the compression ratio is 5.5 and we know from the diagram the compression ratio V compression ratio is equal to आपका R से डिनोट करते हैं और R is equal to आपका होता है V1 by V2 means V1 by V2 is equal to आपका given है 5.5. Further, चूंकि just because of this is a constant volume process, so Vt is equal to V3. तो यहाँ पर V2 is equal to V3 आपका दे रखा गया है और V1 by V2 is equal to R as you seen here. So V1 by V2 is equal to R या R is equal to I can say 5.5. Now as I am told you in when I was explaining the derivation of Otto, diesel and dual cycle, that when you are going to solve these numericals, then you have to go through all these processes which you have done in the derivation. तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं डेरिवेशन के समय भी हमने अगर हम बात करते हैं हमें जो फाइंड आउट करना है पहले आप उसको देख लीजिए. डिटरमाइन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द सेलियंट पॉइंट्स, मीन्स अलग अलग पॉइंट्स पर आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए. मीन्स P1 T1, P2 T2, P3 T3 एंड P4 T4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. आफ्टर दैट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी मीन्स ईटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस 1 to 2 के लिए. द प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, सॉरी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस. सो इन प्रोसेस 1 to 2 P2 by P1 is equal to V1 by V2 to the power gamma. I can write here that P2 by P1 is equal to V1 by V2 to the power gamma. Just because of V1 by V2 is equal to R, so P2 by P1 is equal to R to the power gamma. We know the value of R is 5.5, gamma is given here 1.4, so P2 by P1 is equal to 5.5 to the power 1.4 means P2 by P1 is equal to 10.88. So the value of P2 is equal to P1 multiplied by 10.88 means 10.88 into 10 to the power 5 Newton per meter square. One more thing, the thing which is given in the question, the pressure and temperature at the beginning of compression are 1 bar and 27 degree centigrade. means जब आप कंप्रेशन को स्टार्ट कर रहे होते हो उस समय प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी गई है. तो हमारी कंप्रेशन की स्टार्ट की प्रोसेस कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और 2 तक हमारा कंप्रेशन प्रोसेस हमारी होती है. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंप्रेशन पर आपकी वैल्यू दे रखी गई है. मीन्स हमें वैल्यू P1 और T1 की वैल्यू हमें दे रखी गई है. P1 इज इक्वल टू 1 बार मीन्स 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 300 डिग्री केल्विन.
So from process 1 to 2 I have got the value of P2. Now the value of T2. So again 1 to 2 process is a isentropic compression process. So in T2 by T1 is equal to V1 by V2 to the power R to the power gamma minus 1, means T2 by T1 is equal to 5.5 power 0.4. So on further solving we get T2 by T1 is equal to 1.978. So the T2 value of T2 is equal to 1.978 मल्टीप्लाइड बाय T1, और T1 की वैल्यू हमें दे रखी गई है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन में पुट कर दिया। फाइनली जो हमारी T2 की वैल्यू निकल के आई, T2 इज इक्वल टू 320.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे यहाँ T2 की वैल्यू निकल आई। हमें फाइनली निकालना क्या था, जो डिफरेंट अलग अलग सेलियंट पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन पर P और प्रेशर एंड टेम्परेचर की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया P1 और T1 की वैल्यू हमें दे रखी गई थी, P2 और T2 की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के फॉर्म में हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं प्रोसेस 2 to 3 के लिए। अब प्रोसेस 2 से 3 आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अगर हम सिंपल गैस इक्वेशन फॉर्म लगाते हैं तो गैस इक्वेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P2 V2 by T2, अब देखिए गैस इक्वेशन फॉर्मूले की अगर हम टर्म में बात करते हैं तो आपका इक्वेशन आती है P2 V2 by T2 इज इक्वल टू P3 V3 by T3, just because of V2 is equal to V3, because of this is a constant volume process, so V2 will be cancelled out by P3। तो यहाँ पर आपकी रिलेशन निकल के आएगी P2 by T2 is equal to P3 by T3, we have seen in my next slide। Yes, from here T2 by P3 T3 by T2 is equal to P3 by P2, which I have told you in my slide, just like that P2 by T2 is equal to P3 by T3। तो उसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो हमारी रिलेशन आ गई T3 by T2 is equal to P3 by P2, और हमें P3 की वैल्यू हमने अभी सॉल्व किया हुआ है लास्ट पार्ट में। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दे रखी गई है, द पीक प्रेशर इज 30 बार। जो हमारी इस ऑटो साइकिल में जो मैक्सिमम प्रेशर हमें गेन होगा वो हमारा 30 बार का प्रेशर दे रखा गया है। मैक्सिमम प्रेशर हमारा क्या होगा, अगर इस साइकिल पे आप देखते हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम प्रेशर रेंज अगर आप देख रहे हैं तो ये आपकी मैक्सिमम प्रेशर रेंज है, और ये आपकी रेंज है P3, मीन्स हमें क्वेश्चन में P3 दे रखा गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं T3 by T2 इज इक्वल टू P3 by P2। P3 हमें दे रखा गया है, P2 हमने निकाल लिया है, तो यहाँ से T3 by T2 वैल्यू आ गई। T2 की वैल्यू भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ से हमारा T3 वैल्यू निकल आती है। अब बात करते हैं प्रोसेस, देखिए पॉइंट 1 पे हमें पास P1 T1 की वैल्यू हमें पता थी, पॉइंट 2 पर P2 और T2 की वैल्यू हमें निकाल ली है। पॉइंट 3 पर बात करते हैं, P3 की वैल्यू हमें दे रखी गई थी, T3 को निकाल ली है। अब अगेन बात करते हैं पॉइंट 4 के लिए। तो पॉइंट 4 के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कंसीडरिंग द प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 if I am talking about, this is again isentropic process, but this is a isentropic expansion process। So in this P3 by P4 is equal to V4 by V3 to the power gamma, just because of that V4 is equal to V1 and V3 is equal to V2, so P3 by P4 is equal to V1 by V2 to the power gamma। V1 by V2 is equal to R, which is in the question the value of R or the value of compression ratio is given is 5.5, so P3 by P4 is equal to 5.5 to the power gamma, or I can say the 5.5 to the power 1.4। So the value of P3 by P4 is equal to 10.88, from where we can find out the value of P4 is equal to P3 divided by 10.88 means 2.76 into 10 to the power 5 Newton per meter square, the value of P4। Again using the isentropic expansion process, process 3 to 4, T3 by T4 is equal to R to the power gamma minus 1, R value we know that 0.4 is the gamma minus 1 value, so on putting the value of T3 we get that T4 is equal to 827.1 degree Kelvin, or I can say that 554.1 degree centigrade। These are the different values of pressure and temperature at different salient points। The next part which was asked in the question was the air standard efficiency of the cycle। The air standard efficiency of the cycle, we know the formula, efficiency is equal to 1 minus 1 upon R to the power gamma minus 1। We know that the value of R is given in our question, the gamma value also given in our question, so the eta auto is equal to, we find out the value of eta auto is equal to 49.43%। ये हमारी होगी साइकिल की इफिशियंसी, जो हम ऑटो साइकिल की बात करते हैं उस केस में। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है,
कोई भी फर्दर आपकी अगर हम किसी बात करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, जो भी ऑटो हो डीजल हो, अभी फर्दर हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके साथ में, किसी भी न्यूमेरिकल के टर्म में बात करते हैं तो जो भी आपके डेरिवेशंस की स्टेप थी उनको वन बाय वन आप सॉल्व करते जाइएगा, वन बाय वन आप फॉलो करते जाइएगा, आपका इजली कोई भी क्वेश्चन होगा इजली आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an engine working on diesel cycle. Here that's just concentrate on this point, working on diesel cycle. Just because of it is a diesel cycle means it is a constant pressure cycle. So first of all we have to draw the constant pressure cycle, which I have draw here PV diagram. 1 to 2 is isentropic compression, 2 to 3 is constant pressure heat addition. Yes, just because of in your question the thing is written that diesel cycle, so I have draw a constant pressure cycle, a constant pressure heat addition cycle I have draw. 3 to 4 is the isentropic expansion, 4 to 1 is constant volume heat rejection cycle process. So again I am reading the question. In an engine working on diesel cycle, inlet pressure and temperature are 1 bar and 17 degrees centigrade respectively. इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर मीन्स इनलेट प्रेशर, इनलेट आपका कहाँ पर हो रहा है, कहाँ से आपकी स्टार्टिंग आपकी हो रही थी, तो इनलेट प्रेशर एंड टेम्परेचर आपका P1 एंड T1 की वैल्यू दे रखी गई है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो P1 इज इक्वल टू आपको दे रखा गया है 1 बार मीन्स 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्दर बात करते हैं अगर हम प्रेशर के आपका टेम्परेचर के लिए, तो T1 की वैल्यू आपको दे रखी गई है T1 इज इक्वल टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको केल्विन के टर्म में बात करते हैं तो 273 इसमें केल्विन हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 290 डिग्री केल्विन। प्रेशर एट द फर्दर क्वेश्चन में, प्रेशर एट द एंड ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन इज 35 बार। जब आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जिस समय आपका एंड हो रहा होता है उस समय का प्रेशर दे रखा गया है 30 बार। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं वो आपकी होती है, या एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो वो आपकी होती है 1 to 2 मीन्स एट द एंड ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन मीन्स P2। तो P2 की वैल्यू यहाँ आपको दे रखी गई है 35 बार, या आप कह सकते हो 35 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वन मोर थिंग आई हैव सीन हियर इन द डायग्राम, P2 इज इक्वल टू P3 मीन्स आपको P2 और P3 की वैल्यू दोनों आपको दे रखी गई है। फर्दर द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन that is after constant pressure heat addition is 5 means जो आपका एक्सपेंशन रेशियो आपको है वो आपको 5 आपका दे रखा गया है आफ्टर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। फर्दर गामा की वैल्यू दे रखी गई है, सीपी की वैल्यू दे रखी गई है एंड सीवी की वैल्यू दे रखी गई है। ये सारी वैल्यू आपको दे रखी गई है। आपसे कहा गया है कैलकुलेट हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। हमें हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन एंड साइकिल एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 के लिए। द प्रोसेस 1 to 2 इज एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। सो V1 by V2 या कंप्रेशन रेशियो हमें आपका R होता है, और V1 by V2 इज इक्वल टू P2 by P1 to the power 1 upon गामा, जस्ट बिकॉज ऑफ P2 by P1 इज इक्वल टू V1 by V2 पावर गामा। सो V1 by V2 इज इक्वल टू P2 by P1 to the power 1 by गामा। P2 वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रखी गई है, P1 की वैल्यू हमें दे रखी गई है, गामा हमें दे रखा गया है। तो V1 by V2 इज इक्वल टू 35 by 1 अपॉन गामा मीन्स आपका V1 by V2 आपका आ गया 12.674। अब बात करते हैं कट ऑफ रेशियो की। कट ऑफ रेशियो आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो आपका वॉल्यूम का रेशियो होता है वो कहलाता है कट ऑफ रेशियो। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वॉल्यूम का रेशियो आपका क्या होगा V3 by V2 मीन्स कट ऑफ रेशियो इज इक्वल टू V3 by V2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, V1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो V3 by V1 इज इक्वल टू V1 by V2। और V3 by V1 की अगर हम बात करते हैं तो V3 by V1 आपका V1 by V2 आपका कंप्रेशन रेशियो है, और V3 by V1 की बात करते हैं तो V3 by V1 के टर्म में अगर हम बात करें तो वहां पर आपका, एक मिनट आप यहां देखिए, V3 by V1 की बात करते हैं तो V1 इज इक्वल टू आपका यहां पर आपका दे रखा आपका होता है हाँ देखिए V3 by V1 की यहाँ बात कर रहे थे, और यहाँ पर आपको डायग्राम से आपको शो हो रहा है V1 इज इक्वल टू V4 है।
तो V3/V1 कहें या हम V3/V4 कहें, सेम चीज़ है, जस्ट बिकॉज ऑफ V4 इज इक्वल टू V1. So and V3/V4 इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो, जो आपको यहाँ पर दे रखा गया है, क्योंकि आपसे यहाँ कहा गया है एक्सपेंशन रेशियो, जो एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही है आफ्टर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस आपकी कौन सी है? 2 to 3 प्रोसेस आपकी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है. इसके बाद में जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन दो जगह हो रहा है, 2 to 3 में भी आपका एक्सपेंशन हो रहा है, जहाँ पर आपका वॉल्यूम आपका बढ़ता है. जिस प्रोसेस में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा दैट सिंपली हम उसको एक्सपेंशन प्रोसेस कह सकते हैं. तो 2 to 3 में भी एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है. तो द एक्सपेंशन रेशियो जस्ट आफ्टर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन मीन्स प्रोसेस 3 to 4 के लिए वैल्यू यहाँ आपको दे रखी गई है. तो हम यहाँ बात करते हैं V1/V2 कंप्रेशन रेशियो एंड या आप कह सकते हो V4/V3 प्रोसेस आपकी एक्सपेंशन रेशियो है. तो यहाँ पर V4/V3 आपको 5 दे रखा गया है. तो यहाँ से आपकी रिलेशन आ जाएगी कट ऑफ रेशियो RC या VC इज इक्वल टू 12.674 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स आपका 2.535. ये आपकी कंप्रेशन रेशियो आपकी कट ऑफ रेशियो आपका आ गया. अब बात करते हैं प्रोसेस 1 to 2 अगेन, बिकॉज ऑफ दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस. T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा. On putting the value of P2 and P1, we also know the value of T1. So the value of T2 is equal to 801.7 degree Kelvin. From process 2 to 3, process 2 to 3 is a constant pressure heat addition process. तो constant pressure heat addition process में अगर हम simply गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो आपकी आ जाएगी P2V2/T2 इज इक्वल टू P3V3/T3. जस्ट बिकॉज ऑफ P2 इज इक्वल टू P3 है, तो यहाँ पर आपकी रिलेशन आएगी V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3. सिंप्लीफाई किया तो आपका एक टर्म निकल के आया T3 इज इक्वल टू T2 V3/V2. वी नो द वैल्यू ऑफ T2. V3/V2 इज अ कट ऑफ रेशियो. I have find out the value of cutoff ratio. So simply on putting the value of cutoff ratio, we get the value of T3 is equal to 232.3 degree Kelvin. Now we consider the process 3 to 4. Process 3 to 4 is an isentropic expansion process. So in isentropic expansion process, T4/T3 is equal to V3/V4 to the power gamma -1. Again, we know the value of V3/V4, or you can say the value of V4/V3 is the expansion ratio. So we can say we can write here T4 is equal to and we also know the value of T3. So the value of T4 is equal to 2032.3 multiplied by 1/5 to the power 0.4 मीन्स यहाँ से आपका T4 की वैल्यू आपकी निकल आई. अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था? हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन एंड इफिशियंसी ऑफ द साइकिल. So the heat addition at constant pressure process, just because of heat addition is going on in a constant pressure cycle, constant pressure process. So the value of heat addition is equal to Cp T3 minus T2. Cp की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी गई है 1.004. T3 value, I have find out the value of T3 and also I have find out the value of T2. So the heat addition value is 1235.5 kilojoule per kilogram. Now the value of heat rejection is just because of heat rejection takes place in a constant volume process. So heat rejection is equal to Cv T4 minus T1. Cv value is given into the question. T4 and T1 value I will find out. So the value of heat rejection is equal to 557.5 kilojoule per kilogram. Now the efficiency of the cycle. Efficiency of any cycle I have also know. The efficiency of cycle is heat rejection minus heat supplied minus heat rejection divided by heat supplied. So and I have also find out the value of heat rejection and heat supplied. So the value of the efficiency of the diesel cycle which is given in our question is 54.9%. तो ये हमारे यहाँ से निकल आती है इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल. सिंपल क्वेश्चन है अगेन कि आप ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोसेस आपको यूज़ करनी है. सबसे पहले उसकी आप साइकिल का डायग्राम बनाइए. जो भी स्टेप हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, आप उन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाइए, इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व हो आपका हो जाएगा. नाउ वी गो फॉर अनदर क्वेश्चन. यस, दिस टाइम द क्वेश्चन इज ऑन द डुअल साइकिल. First I am going to read the question, what is question says and what we have, what are the terminology are given to the question. An air standard dual cycle has a compression ratio of 10, means
आपके सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा गया है द साइकिल विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन या द प्रोसेस विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डुअल साइकिल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ अ डुअल साइकिल पीवी डायग्राम. पीवी डायग्राम ड्रॉ करके हमने प्रोसेस 1 to 2 इज अ आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस. प्रोसेस 2 to 3 is constant volume heat addition process. Process 3 to 4 is constant pressure heat addition process. Process 4 to 5 is adiabatic expansion process, and process 5 to 1 is constant volume heat rejection process. The compression ratio of the cycle is given in your question. So the value of V1 by V2 or the value of R is given in your question. R is equal to V1 by V2 is equal to 10 is given in your question. The pressure and temperature at the beginning of the compression are 1 bar and 27 degrees centigrade. Compression, the beginning process of your compression start at point 1 just because of the compression process is 1 to 2. So the beginning of the compression is point 1. The value of P1 and T1 is given in your question. P1 is equal to 1 in 10 to the power 5 Newton per meter square, and T1 is equal to 27 degree centigrade, or you can say 300 degree Kelvin. The maximum pressure reached is 42 bar. The maximum pressure, if you are seeing here in your cycle, the maximum pressure point is point 3 and 4, means here P3 is equal to P4 is given in your question. The value of P3 is equal to P4 is equal to 42 bar, means 42 into 10 to the power 5 Newton per meter square. The maximum temperature is 1500 डिग्री सेंटीग्रेड. जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको अपने साइकिल में मिल रहा है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका है. अब मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट कौन सा होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ 1 to 2 इज अ heat addition process, means temperature of T3 is greater than temperature of T2. Again process 3 to 4 is again a heat addition process, so the temperature of T4 is greater than temperature of T3. So the maximum temperature point in your cycle is T4. So T4 is equal to 1500 degree centigrade given in your question. Determine the temperature at the end of constant volume heat addition process. Temperature at the end of constant volume heat addition process. Constant volume heat addition process आपकी है process 2 to 3. तो at the end of constant volume heat addition process means you have to find out the temperature at the point of 3, means T3 की वैल्यू आपको पता करनी है. Further, cutoff ratio. Cutoff ratio means the ratio of volume at constant pressure process, means V4 by V3 is equal to cutoff ratio. You have to find out the value of V4 by V3. Further, work done per kilogram of air. 1 kilogram of air, just because of I am taken in my question the mass of air is 1 kilogram, m is equal to 1. So the value of m is given here 1 kilogram. We have to find out the value of work done obtained by the 1 kilogram of air. Further, the cycle efficiency, the efficiency of dual cycle, I have also to find out. Now I am going to solve the question. क्वेश्चन आपको दे रखा गया है Vs by Vc. Vs आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, Vc क्लियरेंस वॉल्यूम. जस्ट बिकॉज ऑफ वी नो डेट R इज इक्वल टू आपका होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम. तो यहाँ से Vs by Vc आपको निकल आएगा R माइनस 1 इज इक्वल टू, चूंकि हमें R की वैल्यू दे रखी गई है 10, तो यहाँ से Vs by Vc इज इक्वल टू 9. Vs इज इक्वल टू 9 टाइम्स Vc. फर्दर गामा की वैल्यू हमें यहाँ पर चूंकि Cp और Cv की वैल्यू दे रखी गई है, गामा नहीं दे रखा गया, हमें पता है गामा इज इक्वल टू आपका होता है Cp बाय Cv. सो गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv. ऑन सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू 1.4. नाउ वी कंसिडर द प्रोसेस 1 to 2. Process 1 to 2 is a constant, the process 1 to 2 is adiabatic compression process. So in process 1 to 2, T2 by T1 is equal to R to the power gamma minus 1. The value of R is given 10. So the value of T2 by T1 is equal to 10 to the power 0.4 is equal to 2.512. For that, T2 is equal to the value of T1 is given in our question 27 degree centigrade. So the T2 is equal to 753.6 degree Kelvin. Now the value of P2 by P1. P2 by P1 is equal to R to the power gamma, and R is given in our question is 10. Gamma I find out by Cp by Cv. So P2 by P1 is equal to 25.12.
and P2 is equal to 25.12 into 10 to the power 5 Newton per meter square, just because of value of P1 is given in our question. Now we go to the process of process 2 to 3. The process 2 to 3 is a constant volume process. So T3 by T2 is equal to P3 by P2, and the value of P3, maximum pressure of the cycle, is given. So the value of P3 is equal to 42, P2 is equal to 25.12. I have find out that the T3 by T2 is equal to 1.672, and the value of T2 I have also find out here. So the value of T3 is equal to 1260 Kelvin, or I can say 987 degree Kelvin. Sorry. Now we go through the process 3 to 4. In process 3 to 4, cutoff ratio RC is equal to, just because of process 3 to 4 is a constant pressure process. So here V4 by V3 is equal to T4 by T3. The value of V4 by V3 cutoff ratio is given. So that I have to find out the value of V4 by V3. So V4 by V3 is equal to T4 by T3. T4 value is given in our question. Maximum temperature is given, and the temperature T3 value I have find out. So the RC V4 by V3 is equal to 1.407 आपकी वैल्यू होगी कट ऑफ रेशियो की. नाउ फर्दर द वर्क डन बाय द साइकिल. वर्क डन आपका किसी साइकिल के लिए अगर बात करते हैं तो आपका होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड. सो द हीट सप्लाइड, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट सप्लाई इज टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप in constant volume process as well as in constant pressure process. So in constant volume process we putting the value of Cv, and constant pressure process we put the value of Cp. So the heat supply is equal to Cv T3 minus T2 plus Cp T4 minus T3. Means on putting the value of all the Cv and Cp, T3, T2, T4 and T3, we get the heat supplied is equal to 878.1 kilojoule. Further, if you are going through the process process 4 to 5, then process 4 to 5 is again a isentropic expansion process. So here T4 by T5 is equal to V4 by V5 by V4 to the power gamma minus 1, and V5 by V4 को हम और सिंप्लीफाइड वेट में अगर हम लिखते हैं तो आपका V5 by V4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमने पेंसिल से मार्क कर रखा है, V5 by V4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V1 by V2 मल्टीप्लाइड बाय V2 by V4. तो हमने जस्ट बिकॉज ऑफ V5 इज इक्वल टू आपका V1 है, क्योंकि 5 to 1 प्रोसेस आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो V5 इज इक्वल टू V1 है, और पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो यहाँ से V1 बाई V2 मल्टीप्लाइड बाई V2 बाई V4. V1 बाई V2 कंप्रेशन रेशियो है, हमें दे रखा गया है. और अगर हम बात करते हैं V4 बाई V2, तो V4 बाई V2 आपका सिंपली आपका हो जाएगा V4 बाई V2 टर्म की आपका हो जाएगा RC कट ऑफ रेशियो. तो यहाँ से T4 बाई T5 इज इक्वल टू R बाई RC टू द पावर गामा माइनस 1. इसको आप डायरेक्टली एक फॉर्म हम यहाँ पर देखिए आपका टर्म आपका आ गया R और RC का. R की वैल्यू दे रखी थी, RC वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई T4 बाई T5 की. सो सिंपली द वैल्यू ऑफ T5 इज इक्वल टू 809.2 Kelvin. The heat rejection of the cycle, just because of heat rejection is takes place in a single process and in a constant volume process. So heat rejection is equal to Cv T5 minus T1. The formula of heat rejection is equal to mCv T5 minus T1, just because यहाँ आपको दे रखा गया है कि आपको पर किलोग्राम ऑफ एयर की बात करनी है, तो m की वैल्यू 1 रख देंगे, तो आपका हीट रिजेक्शन आपका आ जाएगा Cv T5 minus T1. On putting the value of Cv T5 and T1, we get the heat rejection is equal to 365.1 kilojoule. So the work output is equal to heat supplied minus heat rejected. The final work supplied is equal to work output is equal to 513 kilojoule. And the efficiency of the dual cycle, efficiency of any cycle is the work done divided by heat supplied. तो यहाँ पर हमें वर्क डन पता है, हीट सप्लाइड हम निकाल चुके हैं. तो फाइनल इफिशियंसी ऑफ द डुअल साइकिल इज इक्वल टू 58.54. तो ये आपके जो मेथड हैं, डिफरेंट मेथड हैं जिसके थ्रू हम डुअल साइकिल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमें डुअल साइकिल के डेरिवेशन की हमने स्टेप्स की बात करी थी, वही सिंपल स्टेप वन आफ्टर अदर हम फॉलो करते गए और उनके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो कहीं पर भी आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ऑटो, डीजल या डुअल पर, आप सिंपल उसकी जो स्टेप्स हैं आप उनको फॉलो करते जाइए
और उनको फॉलो करके आप इजली सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए फर्दर हम बात करते हैं एक्चुअल साइकिल एंड देयर एनालिसिस। यस, दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट and frequently the question which is asked in your exams, what is the actual cycle and how does it differ from air standard cycle। सबसे पहले एक्चुअल साइकिल आपकी होती क्या है और एयर स्टैंडर्ड साइकिल से डिफर क्यों करती है, या डिफर कितना डिफर करती है। अब देखिए बेसिकली आपका होता क्या है कि जब कभी हम कहीं पर भी किसी साइकिल की बात करते हैं तो आपको हम बता चुके हैं, सबसे पहले आपको उस साइकिल की एफिशिएंसी या उस साइकिल की अलग अलग टर्मिनोलॉजी को फाइंड आउट करना होता है। Just because of actual cycle of IC engine are very complicated, the heat supplied in some other condition, the heat rejection is some other condition, heat losses are also occurs. Just because of that, the actual cycle is differ from the air standard cycle। तो एक्चुअल साइकिल में अगर हम बात करते हैं तो हमारे बहुत से नंबर ऑफ लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल साइकिल की जो फाइनल एफिशिएंसी हमारी आती है वो हमारी डीजल आपकी जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी है, आइदर वो ऑटो हो, डीजल हो या डुअल हो, उनसे आपकी डिफर करती है। देखिए यहाँ पर मेंशन करते हैं एक्चुअल साइकिल एफिशिएंसी इज मच लोअर देन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी। जस्ट फोकस दिस पॉइंट, much lower than the air cycle efficiency due to various losses occurring in the actual engine operation। The major losses are due to, हम वही सेम चीज़ आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारे एक्चुअल साइकिल में बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आइडियल कंडीशन में कंसीडर नहीं करते हैं। इसकी वजह से एयर स्टैंडर्ड साइकिल की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चूंकि उसकी कैलकुलेशन करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईज ऑफ कैलकुलेशन वहाँ पर होती है, इसलिए हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद में हम उसमें नंबर ऑफ लॉसेस को कंसीडर करते हुए उसको एक्चुअल साइकिल की एफिशिएंसी के अप्रॉक्स हम लेके आते हैं। The different losses which are occurs in our actual cycles are variation of the specific heat with temperature। In our air standard cycle, I have told you that the specific heats are constant at different points, but in actual case the specific heat, the value of Cp and Cv are changes with the changes in temperatures। फर्दर डिसोसिएशन ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट, जो हमारे कंबशन प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वहाँ पर आपका उनका डिसोसिएशन होता है, तो जितनी हमें केमिकल एनर्जी फाइनली मिलनी चाहिए थी फ्यूल के बढ़ने के बाद में, उतनी ना मिलकर उसमें कुछ ना कुछ वेरी आप ही करती हैं, वो आपका एक और अगेन लॉस हो गया। जस्ट बिकॉज आई एम थिंकिंग इफ दिस particular amount of fuel we have burned, the certain amount of energy will be generated, but just because of the chemical decomposition of the combustion product, less some less amount of energy we have found out। further the progressive combustion, हमने बात की थी जब हम किसी कंबशन की बात करते थे तो हमने बताया था जैसे ही हम चार्ज को बंद करते हैं सडनली चार्ज एक्सप्लोड करता है और पूरा चार्ज एक साथ बंद करता है, लेकिन चूंकि कंबशन जब आप स्टार्ट करते हो एक जगह से और तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के फॉर्म में चार्ज आगे बढ़ता जाता है और पूरे चार्ज को आपको धीरे धीरे बंद करता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, इसकी वजह से जो इंस्टेंट केस में जो हमें जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो न मिलके कुछ कम मिलती है, तो अगेन ये आपका एक लॉस आपका है। फर्दर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल, some amount of fuel is also remains in the form of unburned charge just because of lack of because of नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन और द फ्रेश एयर। जो हमारा चार्ज होता है कुछ अनबर्न रह जाता है क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ अनबर्न गैसेस आपके कुछ ऑक्सीजन की कमी या जो आपके फ्रेश एयर है वो हमें नहीं मिल पाती है, जो कि चार्ज बनने के लिए फ्रूटफुल है या फिर उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। फर्दर जो आपके लॉस होते हैं, heat transfer into the wall of the combustion chamber। Yes, in our air standard cycle we have assumed that there is no loss occurs in our no heat loss occurs in our whole cycle। जबकि एक्चुअल केस में हम बात करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ हीट लॉसेस होते हैं सिलेंडर वॉल्स के थ्रू, हेड्स के थ्रू, स्पार्क प्लग एरिया, एग्जॉस्ट वॉल एरिया, अलग अलग एरिया से हमारे नंबर ऑफ लॉसेस होते हैं और उन हीट लॉसेस को कम करने के लिए हम लुब्रिकेशन अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, आइदर कूलिंग अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका एयर कूलिंग हो या वाटर कूलिंग हो। तो ये अलग अलग जो आपके कूलिंग अरेंजमेंट यूज़ किए जाते हैं वो हीट जो आपकी लॉस आपको हो रही होती है, जो हीट जनरेट होती है उसको उसको आपका रिड्यूस करने के लिए होता है, और जो हीट जनरेट हो रही होती है इंजन को हीट कर रहे होते हैं, बेसिकली ये आपका एक हीट लॉस होता है। फर्दर नेक्स्ट आपका जो लॉस आपका होता है ब्लो डाउन एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट प्रोसेस।
एग्जॉस्ट प्रोसेस जो आपकी होती है उसमें कुछ ना कुछ आपका ब्लो डाउन आपका होता है। ब्लो डाउन मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान समझिएगा। जब कभी हमारा पिस्टन, हमने आपको देखिए बताया था, जब पिस्टन आपका टीडीसी पर होता है और आपका कंबशन होता है, कंबशन के बाद में पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी आता है बहुत तेज़ी से, और जब पिस्टन नीचे आ जाता है तब आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, अब जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा, बीडीसी से टीडीसी जाएगा, तो बर्न गैसेस को बाहर निकालेगा। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके लॉसेस होते हैं। अब उनको बहुत ध्यान समझिएगा, आगे 2-3 बार ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी अलग अलग केसेस में। अब होता क्या है, जैसे पिस्टन हमारा नीचे आया, एग्जॉस्ट वाल्व अभी हमारा बंद था। अब जब पिस्टन पूरा नीचे आ गया है, अब हमने एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन किया है। अब जैसे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो उसको अंदर जो गैसेस आपकी बर्न गैसेस थी बहुत हाई प्रेशर पर होती हैं। इतनी हाई प्रेशर पर गैसेस को रिपेल करने के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा हाई एनर्जी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब जब इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी एनर्जी मिल रही थी उसमें से बहुत सी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी पिस्टन को ऊपर की तरफ फोर्स करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी लॉसेस हमारे कम हों, पिस्टन को रिपेल करने वाले। तो जो पिस्टन को रिपेल करने वाले लॉसेस हैं वो कम करने के लिए हम करते क्या हैं, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रहा होता है उसी समय हम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, पिस्टन को जितनी तेजी से नीचे आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर आपका है वो कुछ रिड्यूस हो गया है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व पहले ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपका प्रेशर लॉस आपका होता है, पिस्टन नीचे आता है। अब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो अंदर चूंकि गैसेस कम प्रेशर पर हैं, तो कम आपको चार्ज को रिपेल करना पड़ता है। रिपेल करने के लिए कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए, लॉस आपका पहले केस में भी था, लॉस आपका सेकंड केस में भी है। पहले केस में लॉस आपका क्या था, पिस्टन को नीचे से ऊपर भेजने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा था, वहाँ पर आपकी एनर्जी लॉस हो रही थी। सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपका पहले से ही हम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितना प्रेशर से पिस्टन नीचे आना चाहिए था उतनी तेज़ी से नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं तो फिर भी हमारे एनर्जी लॉसेस हमारे कम होते हैं इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट केस। सो दिस इज अवर ब्लो डाउन एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट प्रोसेस। The next losses in our actual cycle is the gas exchange process. Gas exchange process means when the burnt gases flew off out to the cylinder, some fresh charge which have already comes into the cylinder due to the from the inlet valve is also goes away by the exhaust valve. क्योंकि अभी एक चीज़ अभी आप आगे आपको जो पढ़ाएंगे तो एक चीज़ आपको और दिखेगी। हमने आपको बताया था जिस समय सक्शन होता है सिर्फ इनलेट वाल्व ओपन होता है, जिस समय एग्जॉस्ट हो रहा होता है सिर्फ आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। लेकिन एक्चुअल केस में आपका क्या होता है कि क्योंकि ये प्रोसेस इतनी फ्रिक्वेंटली हो रही होती है, इतनी जल्दी ये प्रोसेस अब होती हैं, बहुत कम टाइम मिलता है, माइक्रो सेकेंड्स का टाइम होता है आपके सक्शन के लिए और आपके एग्जॉस्ट के लिए। तो इतने कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका सर्ट एक जितना अमाउंट ऑफ चार्ज में रिक्वायर्ड होता है वो आपके इंजन के अंदर आना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर उतना ईजिली नहीं आ पाता है। तो उस केस में हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है कि इनलेट वॉल्व को थोड़ा पहले ओपन कर दें और एग्जॉस्ट वॉल्व को थोड़ा देर तक ओपन रखें। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर केस में आपका जो फ्रेश चार्ज आपका आता है वो बर्न चार्ज के साथ मिक्स होकर बाहर निकल आता है। तो जितनी एफिशिएंसी या जितनी पावर हमें इंजन से मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपका गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, गैसेस आपके बाहर निकल जाती हैं। तो ये आपके दिस आर द few losses which are occurs in our actual engine, just because of the efficiency of the actual engine cycle is much lower than the efficiency of the ideal cycle. Out of these 7 losses, the major impact occurs into the actual cycle, into the cycle, into the in our automobile engine are is due to the following 3 losses. These are the time loss factor, heat loss factor and exhaust blow off factor. ये आपके बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपका जितने भी लॉसेस आपके होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लॉसेस का रीज़न आपका यही होता है, ये आपके 3 लॉसेस का। अब अगेन हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। टाइम लॉस फैक्टर की बात करते हैं तो टाइम लॉस फैक्टर बेसिकली आपकी वो टाइम ड्यूरेशन होती है जिसमें आपका चार्ज की बर्निंग और आपकी इनलेट एंड एग्जॉस्ट आपका हो रहा होता है। हीट लॉस फैक्टर की बात करते हैं तो हीट लॉस फैक्टर के केस में हम मान के चलते थे कि हमारा कोई हीट लॉस नहीं हो रही है, इंजन के अंदर जितनी हीट जनरेट हो रही है आई हैव यूटिलाइज ऑल द हीट्स, बट मोस्ट ऑफ द हीट या सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट losses in the form of heating the combustion chamber,
in the form of blue exhaust gases. These are the various terminology in which the heat loss occurs. Exhaust blow down I have already explained you. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है एग्जॉस्ट ब्लो डाउन। ये आपका होता क्या है, फिर से इन शॉर्ट आप समझ लो एक बार कि हमारे पास जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, उसके बाद अगर हम एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे तब हमें गैसेस को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पिस्टन को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेंडर के अंदर जो गैसेस हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर पर होती हैं, इसलिए तो इतने हाई प्रेशर पर गैसेस को बाहर निकालने पर हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और हमें जितनी पावर चाहिए इंजन से नहीं मिल पाएगी। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी आ रहा हो, तो जिस समय आ रहा हो, अभी नीचे तक ना आया हो, आ रहा हो, रास्ते में ही हो, तभी हम एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दें। तो उस केस में कुछ फोर्स अप्लाई होगा पिस्टन को नीचे में जाने में, और कुछ जो फोर्स आपका है, जो आपके हाई प्रेशर गैसेस हैं, आपके एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएंगी। इस केस में भी आपका लॉस होता है, क्योंकि पिस्टन को जितनी तेजी से नीचे आना चाहिए था नहीं आता है, क्योंकि कुछ एनर्जी आपके कुछ हाई प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू एग्जॉस्ट वाल्व रिलीज ऑफ बर्न गैसेस। लेकिन अगर इन दोनों केसेस की बात करते हैं तो इन दोनों केसेस में जो सेकंड केस है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉस कंपेरेटिवली कम है इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट केस। सो हम क्या इसमें फॉलो करते हैं कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आए उस समय एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दें, कुछ गैसेस बाहर निकल जाएं, तो जिसकी वजह से जब पिस्टन नीचे आएगा और नीचे बीडीसी आने के बाद जब आप अगेन पुश करोगे तो आपको उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा जितना आपको पहले केस में लगाना पड़ रहा था। तो ये आपकी प्रोसेस कहलाती है एग्जॉस्ट ब्लो डाउन प्रोसेस, और इसकी वजह से आपकी कुछ न कुछ लॉसेस आपके अकर होते हैं। अब देख लेते हैं हम क्या लॉसेस अकर हो रहे हैं, क्या हमारा एक्चुअल इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पर आप देखिए तो हमने एक दो साइकिल्स के फॉर्म में ड्रॉ कर रखा है। जो आउटर साइकिल आप देख रहे हो, ये जो आउटर वाला पार्ट आपका है, ये बाहर वाला पार्ट आपका, ये आपकी है आइडियल साइकिल। आइडियल केस में आपका ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये आपकी है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। फर्दर आइसेंट्रोपिक सॉरी एक मिनट, जस्ट अ मिनट। फर्दर this process is isentropic expansion process and this is the constant volume heat rejection process। लेकिन चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ लॉसेस हमारे होते रहते हैं, इन लॉसेस की वजह से जो फाइनल हमारा रिजल्ट आता है वो इन साइकिल का जो पीक होता है, पीक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिड्यूस हो जाता है। जो कॉर्नर्स आपके होते हैं वो कॉर्नर आपके बेंडेड फॉर्म में आपके आ जाते हैं। ये हमारे लॉसेस को शो करता है। लॉसेस क्या है, 6% नियर अबाउट लॉस हमारा होता है ओवरऑल इफिशियंसी का, लगभग टाइम लॉस में चला जाता है। टाइम लॉस मीन्स जितनी एनर्जी हम जो मानते थे इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल रही है वो इंस्टेंट ना मिलकर सर्टेन टाइम ऑफ बाद मिलती है, प्रोग्रेसिव वे में एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से जितना हैवी पीक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना मिल करके पीक हमारा शॉर्ट हो जाता है। हीट लॉस फैक्टर जो हमारा आफ्टर बर्निंग जो हमें जितनी पावर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो हमें मैक्सिमम पीक के चाहिए था वो वहाँ न जा करके थोड़ा सा कम होते हैं। ये शो करता है आपका 12% हीट लॉस को। और एट द एंड जो आपकी एग्जॉस्ट प्रोसेस आपकी हो रही होती है, एग्जॉस्ट के केस में जो आपको कॉर्नर मिलना चाहिए था, जो मैक्सिमम प्रोसेस मिलनी चाहिए, तो वो ना मिल करके वहाँ पर लगभग आपका 2% आपका ओवरऑल एनर्जी का लॉस हो जाता है ड्यू टू एग्जॉस्ट ब्लो डाउन फैक्टर। तो ये आपके कहलाती है रियल साइकिल, एक्चुअल साइकिल और आपकी आइडियल साइकिल में क्या डिफरेंस बेसिकली है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं, और विच आर द मेजर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस the actual cycle mostly as compared to the ideal cycle or air standard cycle। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे फर्दर डिफरेंट वॉल्व टाइमिंग डायग्राम्स के रिगार्डिंग, और जो डिफरेंट चीज़ आपकी होगी। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है कि व्हाट इज़ द आइडियल साइकिल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियल साइकिल लाइक ऑटो, डीजल, डुअल, different types of ideal cycles which are used in our automobile section, and how the ideal cycle is different from actual cycle and what are the losses occurs in our actual cycle। Okay, thank you।